चलो फिर आगे शुरू करते हैं अपन। अगला जो टॉपिक हम लोगों ने ऑलरेडी लॉस सारे कर लिए थे, गैस लॉस। विल बी डीलिंग विद अ न्यू थ्योरी जिसका एक पूरा फिजिक्स का यूनिट भी ऐसा आपको बताया था, व्हिच इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। तो भाई गैस की काइनेटिक थ्योरी को डील करेंगे। 6-7 पॉइंट की थ्योरी है, बड़ा सिंपल सी थ्योरी। अपन पहले सारे पॉइंट लिख लेंगे, उसके बाद फिर पॉइंट बाय पॉइंट समझाता चलूंगा, फिर उसका जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है वो बता दूंगा। टॉपिक डाल दो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, और इसमें जो पहला पॉइंट है वो लिख लीजिएगा। अब कुछ बुक्स में इसको 5 पॉइंट में भी दिया होगा, कुछ में 7 में भी दिया होगा, डिपेंड करता है आप उसको कैसे लिखते हो। कई बार एक ही पॉइंट को एलैबोरेट भी कर देते हो। तो पहला पॉइंट, इसको अब्रिविएट करते हैं केटीजी से, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस को केटीजी बोलूंगा तो वही बात है, फिजिक्स में भी सेम कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट लिख लेंगे भाई इसका, ऑल गैसेस all gases are made up of tiny particles. All gases are made up of tiny particles. Bracket में लिखेंगे atoms or molecules. All gases are made up of tiny particles. Bracket में लिखेंगे atoms or molecules. हो गया पहला पॉइंट खत्म हो गया। दूसरा पॉइंट बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है भाई, छोटी सी थ्योरी, सिंपल सी। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, द पार्टिकल्स आर सेपरेटेड, द पार्टिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर, द पार्टिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर particles are separated from one another through large distances. Are separated from one another through large distances. Thus, the volume of the particle itself, thus the volume of the particle itself is negligible. The volume of the particle itself is negligible as compared to the total volume of the gas. The volume of the particle itself is negligible as compared to the total volume of the gas. Next one. The particles are in a ceaseless random motion. CEASELESS. The particles are in a ceaseless random motion. The particles are in a ceaseless random motion. Where they keep colliding with one another. Where they keep colliding with one another and thus changing directions. Where they keep colliding with one another and thus keep changing directions. Next point here. The collision between the particles of the gas, the collision between the particles of the gas, the collision between the particles of the gas are perfectly elastic. The collision between the particles of the gas are perfectly elastic. That is, there is no loss of energy.
that is there is no loss of energy that is there is no loss of energy during these collisions. There is no loss of energy during these collisions. However, the energies get redistributed. However, the energies get redistributed. नेक्स्ट लिख लीजिए कितने पॉइंट्स को चलो अच्छा चेक आप लगा लीजिए the pressure exerted by the gas the pressure exerted by the gas the pressure exerted by the gas pressure exerted by the gas is due to the collision of its particles is due to the collision of its particles with the walls of the container. Excuse me. Due to the collision of its particles with the walls of the container. Next thing. During the motion of the particles, during the motion of the particles, during the motion of the particles, there is no interaction. There is no interaction between them. There is no interaction between them. That is no force of attraction acts between them. That is no force of attraction acts between them. And thus they move independent of each other. And thus they move independent of each other. Thus they move independent of each other. Last one लिखेंगे, seventh. Last one लिखेंगे. The average kinetic energy of the particles. The average kinetic energy of the particles. The average kinetic energy of the particles is directly proportional. Is directly proportional to absolute temperature. The average kinetic energy of the particle is directly proportional to absolute temperature. बड़ा सिंपल सा देखो पॉइंट बाय पॉइंट आप समझते चलो बड़ा सिंपल सी चीज है पहला पॉइंट तो बड़ा बच्चे वाला है कि भाई सारे के सारे गैसेस आर मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स एटम्स से बनेंगे मॉलिक्यूल्स वो हमको ऑलरेडी पता है दूसरा पॉइंट और इजी है कि जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में गैप बहुत ज़्यादा होता है डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है ऑब्वियसली यार इसके अंदर गैसेस भरी हुई हैं राइट अब एक इमेजिन करो ऑक्सीजन गैस है ऑक्सीजन गैस के पार्टिकल बहुत दूर थे मॉलिक्यूल्स हैं बहुत दूर दूर हैं अब क्योंकि गैस ने इस पूरे वॉल्यूम को फिल कर लिया था एक तरीके से गैस का पूरा वॉल्यूम यही इस पूरे रूम के बराबर बट इसको अगर आप कंपेयर करोगे विद द वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल तो फिर मॉलिक्यूल का वॉल्यूम तो नेग्लिजिबल हो जाएगा फिर एक तरीके से क्योंकि उनके बीच में डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा अगर डिस्टेंस कम होता तो डेंसिटी बढ़ जाती फिर आप उसको कंपेयर कर सकते थे वॉल्यूम बेसिकली
क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल का खुद का जो वॉल्यूम होगा वो नेग्लिजिबल होता है एज कम्पेयर टू द एंटायर वॉल्यूम बेसिकली। ठीक, थर्ड पॉइंट अगर हम लोग देखते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग जो लिखा हुआ है वहाँ पे कि जब भी ये पार्टिकल्स मूव करते हैं तो ये रैंडम मोशन हो, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन है तो सीजलेस मोशन है, सीज होता है रुकावट के बिना चलते रहेगा अनंत टाइम तक, वो मूव करते रहते हैं। उनके बीच में क्या होता रहता है, कोलिजन होते रहते हैं, कोलिजन होते रहते हैं। अब कोलिजन होने के कारण क्या होगा, अब वो जो पॉइंट है एक्चुअली अगला पॉइंट भी वही हो जाता है कि जो कोलिजन होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, उनके बीच में या तो दो टाइप के कोलिजन होगा, या तो इलास्टिक होगा या तो इनइलास्टिक होगा। ये फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, क्योंकि हम आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं, आइडियल गैसेस हैं तो इलास्टिक कोलिजन होगा, और इलास्टिक कोलिजन के अंदर भाई जो एनर्जी है और जो मोमेंटम है दोनों कंजर्व होता है, ये हमने पढ़ा हुआ था, राइट। अगर एनर्जी कंजर्व्ड है मतलब इसका मतलब क्या होगा कि अगर यहाँ से ये 10 जूल की एनर्जी से आ रहा है और यहाँ से 15 जूल की एनर्जी से आ रहा है तो जो टोटल कोलिजन सम होगा 25 होना चाहिए। अब इसके बाद हो सकता है कि ये 12 से मूव करना शुरू कर दे, 13 से मूव करना शुरू कर दे, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी अलाउड है बट लॉस ऑफ एनर्जी या गेन ऑफ एनर्जी अलाउड नहीं है। तो देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन। रियल लाइफ वर्ल्ड में क्या होता है, कोलिजन के बाद में एनर्जी लूज हो जाती है। जैसे मैंने आपको बॉल का एग्जांपल बताया था, अगर मैं एक सर्टेन हाइट से बॉल को ड्रॉप करता हूं तो वापस उस हाइट पे नहीं आती क्योंकि वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं है। इनइलास्टिक कोलिजन के कारण क्या हो रहा है, एनर्जी लॉस हो जाती है, बेसिकली एब्जॉर्ब हो रही है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं, एनर्जी लॉस नहीं होगी, हाँ रीडिस्ट्रीब्यूट हो सकती है बेसिकली। तो कोलिजन्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी परफेक्टली इलास्टिक। आगे समझ बड़ा सिंपल। अगला पॉइंट जो अपन लोगों ने देखा हुआ है उसके अंदर कि भाई जो गैस का प्रेशर हम निकालते हैं, जैसे हम ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में पढ़ा था मैंने आप लोगों को, एक गैस को मैं जैसे बॉटल में भर दूं तो गैस का प्रेशर निकालना तो अल्टीमेटली वो प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये जो फोर्स लगेगा ये कौन लगाएगा, पार्टिकल्स लगाएंगे। किसके ऊपर लगाएंगे, उस वॉल्स ऑफ द कंटेनर के ऊपर लगाएंगे। तो उनके पर यूनिट एरिया के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो गैस का प्रेशर कहलाएगा बेसिकली। ऐसा बड़ा सिंपल सा। साथ छठवां पॉइंट क्या है, बड़ा सिंपल सा पॉइंट है भाई वापस वहां पे कि जब भी ये पार्टिकल्स मूव करते हैं इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो जिसके कारण ऐसा नहीं है कि इसके मोशन के कारण उसका कुछ मोशन फर्क पड़ रहा है, ऐसा नहीं, दे आर एक्चुअली मूविंग इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अब वहां पे मैंने एक वर्ड यूज किया कि देयर इज नो इंटरैक्शन। इंटरैक्शन का मतलब ये नहीं कोलिजन तो हो रहा है, इंटरैक्शन वैसा फिजिकल इंटरैक्शन है बट डिपेंडेंट इंटरैक्शन नहीं है कि भाई उसकी वजह से मैं मूव करूंगा, ऐसा नहीं, मैं अपने हिसाब से मूव करूंगा, मैं अपने हिसाब से मूव करूंगा। देयर इज नो रीजन इंटरैक्शन बेसिकली। और जो आखिरी पॉइंट है वो प्रैक्टिकल पॉइंट है जिसके ऊपर हम न्यूमेरिकल बनाते हैं, बट सिंपल सा कांसेप्ट है। अगर आप किसी भी गैस का टेंपरेचर बढ़ाते हैं तो अल्टीमेटली क्या होगा, आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। एनर्जी किसको मिलेगी, पार्टिकल्स को मिलेगी। पार्टिकल्स को एनर्जी मिलेगी और वो रैंडमली मूव करना शुरू कर देंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ जाएगी ना बेसिकली। तो जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी पार्टिकल्स की दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेंपरेचर। आया समझ में? सिंपल से थ्योरी 7 पॉइंट की, कोई जरूरी नहीं कि आप इसी ऑर्डर में लिखो, आप अपने रैंडम कर सकते हो, बट ऑर्डर इसलिए इजी है ये कि आप पॉइंट बाय पॉइंट बनाना चलोगे चीजों को, तो बड़ा सिंपल सा आगे समझ, राइट। अब स्टडीज हमको ये बताती हैं कि अगर आप इस कॉन्सेप्ट का जो आखिरी पॉइंट है टेंपरेचर वाला उसको भी यूज करो और इस पूरी थ्योरी को यूज करो तो एक काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंगली एक रिलेशन बनता है बिटवीन पीवी। अब यूजुअली पीवी इज ऑलवेज इक्वल टू आरटी फॉर अ सिंगल मोल ऑफ गैस, एनआरटी फॉर एन मोल ऑफ गैस, बट फॉर काइनेटिक थ्योरी दिस इज गिवन बाय 1/3 mn u बार का स्क्वायर, u बार का स्क्वायर। यहाँ पे क्या क्या है, तो यहाँ पे जो m है दैट इज ऑब्वियसली द मास ऑफ द पार्टिकल या मास ऑफ द मॉलिक्यूल। जो n है दिस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दैट वॉल्यूम। तो जो भी आप वॉल्यूम ऑफ गैस लेते हो इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो n से रिप्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे जो u बार है और रादर u बार का स्क्वायर पूरा का पूरा, this is known as root mean square velocity. जिसको हम अब्रिविएट कर देते हैं RMS वेलोसिटी से। बेसिकली RMS के बारे में पढ़ेंगे अपन थोड़ा सा, बताऊंगा आपको क्या होता है, बट ये कुछ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनती है। अब यार इसी को मैं थोड़ा सा और इलैबोरेट करने की कोशिश करता हूँ, उसको याद रखना है कि अपन इसको और इलैबोरेट करते हैं। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि किसी भी पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होगी अगर मैं उसको E से रिप्रेजेंट करता हूँ किसी एक पार्टिकल की, तो वो कितनी होनी चाहिए भाई, हाफ mv स्क्वायर होनी चाहिए, हाफ mu का स्क्वायर बेसिकली एक तरीके से ये होगा। ये तो एक सिंगल मोल के लिए होगी। अगर मैं n मॉलिक्यूल्स की बात कर लूँ तो फॉर n मॉलिक्यूल्स E शुड बी इक्वल टू
n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को फॉर n मॉलिक्यूल्स। अब यार ये जो चीज है इसके अंदर मैं छोटी सी चीज करने की कोशिश करता हूँ, मेरे को इसको उसमें कन्वर्ट करना है किस तरीके से, क्योंकि mn यूज कर तो कॉमन दिख रहा है ना, 1/2 का 1/3 में कन्वर्ट करना है। तो देखो मैं ये कर ही देता हूँ ऐसे, मैं 1/3 लिख देता हूँ पहले से। पहले देखो ये जो फॉर्मूला है मैं e के का बना, तो 1/3 कैन नॉट हैपन, 1/2 हैज टू हैपन। तो 1/2 अगर मेरे को यहाँ पे करना है किसी तरीके से, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? अभी पॉसिबल है, नीचे से कर जाएगा, अभी भी 1/2 और यूज कर रहेगा ना एक तरीके से। तो मतलब करने को मैं क्या कर रहा हूँ एक तरीके से 3/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बस, राइट। अब इसमें से ये जो चीज है ये क्या है बेसिकली अपने पास पीवी की वैल्यू एक तरीके से, तो ई की कैन बी रिटन एज व्हाट 3/2, राइट। अब फॉर अ सिंगल मोल ऑफ गैस पीवी ऑलवेज इक्वल टू आरटी, तो मतलब EK can also be written as 3/2 RT। बड़ा सिंपल सा रिलेशन रहता है, 3/2 कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करे? टेंपरेचर पे डिपेंड करे, जो आपका आखिरी पॉइंट है बेसिकली। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वहां पे जैसे जैसे टेंपरेचर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चलेगी। समझ में आया? बड़ा सिंपल सा कांसेप्ट है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। अब ये तो आपके पास हो गया एक मोल के लिए, अब एक मोल के लिए निकालें, बट 1 मोल हैज एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो अगर आप पर मॉलिक्यूल निकालना चाहो एनर्जी पर मॉलिक्यूल, तो क्या करना पड़ेगा? इसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा फिर तुमको। समझ में आएगा ना? तो दिस इज पर मोल। तो अगर मैं पर मॉलिक्यूल निकालता हूं तो EK विल बी इक्वल टू व्हाट 3/2 RT होल डिवाइडेड बाय Na, व्हिच इज एक्चुअली एवोगाड्रो नंबर। सो ये आ जाएगा अपने पास क्या? पर मॉलिक्यूल, राइट। अब इसके अंदर ये जो R/Na है ये कांस्टेंट ऑब्वियसली, जिसको हम लिखते हैं Kb से। ये जो Kb है दिस इज बेसिकली R/Na की वैल्यू, और इसको कहा जाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट Kb की वैल्यू इंटरेस्टिंग कांस्टेंट है। यूजुअली आपको जितने भी अगर आप बोर्ड एग्जाम के पेपर देखोगे 12वीं के फिजिक्स और केमिस्ट्री में दोनों में यूज करते हैं उसको, तो वो लोग आपको पता है आपको फॉर्मूले कुछ वैल्यूज पहले से देते हैं क्वेश्चन पेपर प्रिंटेड पहले से, कुछ कांस्टेंट जैसे एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू दे दी जाती है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी दे देते हैं वो लोग आपको, जस्ट इन केस अगर आपको पेपर में कहीं यूज करना हो। कई बच्चों को याद नहीं रहती वैल्यू, राइट। अब वो अलग बात है, जितना मेरे एक्सपीरियंस में जितनी वैल्यू उन्होंने दी हुई है उससे एसोसिएटेड कोई क्वेश्चन होता ही नहीं पेपर के अंदर, और जिसमें होता है वो देते नहीं सारे वो लोग कभी। बट हाँ जस्ट इन केस अब बोल्ट अब चाहो तो निकाल सकते हो ना, R इज ए गैस कांस्टेंट, राइट। आप 8.314 यूज करो, डिवाइड कर दो उसको 6.022 एक्सपोनेंशियल 23 से, आपको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी बेसिकली। याद करने की जरूरत नहीं, बट याद करो तो अच्छी बात है। फिर वहां से आया समझ में? तो बहुत सिंपल से कांसेप्ट है। पहले तो इतना करेंगे फिर अपन आगे जाएंगे आरएमएस वगैरह क्या होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये हम लोग यूज करते हैं न्यूमेरिकल्स में, बट याद रखना 3/2 RT का यूज कर रहा हूँ, ये कब यूज कर रहा हूँ, वो डिफरेंस है पर मोल और पर मॉलिक्यूल, तो प्लीज बी वेरी श्योर अबाउट